ملکی درآمدات نے برآمدات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جون کے دوران مئی کے مقابلے 16.93% کمی رپورٹ ہوئی۔ مئی میں 2 ارب 68 کروڑ ڈالر کے مقابلے جون کی برآمدات 2 ارب 23 کروڑ ڈالر رہیں۔ گزشتہ سال کے مقابلے 12 ماہ کی مجموعی برآمدات میں 5.97% کمی ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کی تجارتی رپورٹ نے معیشت کی حقیقت عیاں کر دی۔ پاکستان میں مالی سال 2025 سے 26 کے دوران برآمدات کم، درآمدات زیادہ رہیں۔ ملک کی ماہانہ و مجموعی سالانہ برآمدات میں کمی کا سامنا رہا۔ ادارہ شماریات نے جون کے مہینے کی تجارتی رپورٹ جاری کر دی۔ جون کے دوران برآمدات گزشتہ ماہ مئی کے مقابلہ 16.93% کمی رپورٹ کی گئی۔ مئی کی 2 ارب 68 کروڑ ڈالر کے مقابلے جون میں 2 ارب 23 کروڑ ڈالر برآمدات رپورٹ ہوئیں۔ رواں سال جون میں گزشتہ سال جون کی نسبت برآمدات میں 9.61% کمی ریکارڈ۔ گزشتہ سال جون میں 2 ارب 47 کروڑ ڈالر کے مقابلے رواں سال جون میں 2 ارب 23 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ 12 ماہ کی مجموعی برآمدات گزشتہ سال کے مقابلے 5.97% کم رہیں۔ گزشتہ مالی سال 32 ارب 4 کروڑ ڈالر کے مقابلے رواں سال 30 ارب 12 کروڑ ڈالر برآمدات رپورٹ ہوئیں۔ ملکی برآمدات کم ہوئیں تو دوسری جانب درآمدات زیادہ ہونے سے تجارتی خسارہ بڑھ گیا۔ درآمدات میں گزشتہ مالی سال کے مقابلہ 5 ارب ڈالر بڑھوتری، جبکہ تجارتی خسارہ 7 ارب ڈالر زیادہ رہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال ڈوگر، سٹی 41، فیصل آباد۔ ہر شعبے میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا نظام لا رہے ہیں۔ ملک کو اس وقت ایک مستحکم اور پائیدار ٹیکس نظام درکار ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فیصل آباد میں تاجر برادری سے خطاب، بولے ٹیرف رجیم میں مرحلہ وار کمی لائی جا رہی ہے، انرجی ٹیرف میں کمی پر کام جاری ہے۔ وزیراعظم نے وزیر توانائی کو انرجی ٹیرف کم کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ آئی ٹی سیکٹر 4.5 ارب ڈالر کی صنعت بن چکا ہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے نئے مالی سال کے لیے فیسوں کو اپ ڈیٹ کر دیا۔ آج سے نئے ریٹس پر عمل درآمد شروع۔ اراضی ریکارڈ سینٹر فیصل آباد میں ریٹ لسٹیں آویزہ کر دی گئیں۔ جائیداد کی ٹوٹل مالیت پر اب فیصد کے حساب سے ٹیکس دینا ہوگا۔ سٹامپ فیس 1%، ٹی ایم اے فیس 1% مقرر، جبکہ ایف بی آر فیس نان فائلر خریدار کے لیے 2.5% اور فائلر خریدار کے لیے 1.25% ہوگی۔ ایف بی آر فیس نان فائلر مالک کے لیے 5.5% اور فائلر مالک کے لیے 2.25% ہوگی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی فیس 30 لاکھ سے زائد مالیت پر 1% ہوگی۔ رجسٹریشن فیس 5 لاکھ تک 500 ہوگی۔ انتقال فیس 100 سے 600 روپے وصول کی جائے گی۔ مختار نامہ عام و خاص کے لیے 2% فیس ہوگی۔ ہبہ نامہ فیس 1%، ضلع کونسل فیس میں بھی 1% مقرر ہوگی۔ فیسکو کا سینیوٹ میں ڈیٹ ڈیفالٹر کے خلاف ٹریک ڈاؤن، بجلی بلوں کی مد میں 2.25 کروڑ سے زائد کی ریکوری کر لی۔ ریونیو آفیسر فیسکو رائے اللہ دیتا کہتے ہیں، ایس ای فرسٹ سرکل انجینئر امیر خان کی ہدایت پر ڈیٹ ڈیفالٹر میٹروں کے خلاف کارروائیاں کی۔ فیسکو سب ڈویژن نے انڈسٹریز، گھریلو اور دیگر کمرشل سمیت ٹیوب ویل، سنگل اور 3 فیز کے 300 سے زائد میٹرز اتار دیے۔ جون سال کی کلوزنگ ریکوریوں کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی تھیں، جنہوں نے 10% ریکوری ٹارگٹ حاصل۔ موٹر وے استعمال کرنے والی نان ایم ٹیک گاڑیوں کو بڑا ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے این ایچ اے کو شہریوں سے اضافی ٹول ٹیکس لینے سے روک دیا۔ نان ایم ٹیک اور کم بیلنس پر 50% اضافی ٹول لینے کا آئندہ سماعت تک معطل نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے این ایچ اے سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، موٹر وے استعمال کرنے والی نان ایم ٹیک گاڑیوں کو بڑا ریلیف مل گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے این ایچ اے کو شہریوں سے اضافی ٹول ٹیکس لینے سے روک دیا۔ نان ایم ٹیک اور کم بیلنس پر 50% اضافی ٹول لینے کا نوٹیفیکیشن آئندہ سماعت تک معطل کر دیا۔ پہلے پرچی پھر علاج تک رسائی، الائڈ اسپتال 1 میں فیصل آباد پارکنگ کمپنی کا قیام۔ اسپتال میں داخلے کے لیے پہلے پارکنگ پرچی پھر ایمرجنسی تک رسائی ہو سکے گی۔ مریضوں، لواحقین، ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کو شدید پریشانی کا سامنا۔ آپ کو بتائیں، مین گیٹ پر پارکنگ پرچی وصولی کے باعث مین سڑک تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ ڈرائیورز کا کہنا تھا ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کو لے کر جانا ہو تو پہلے 50 روپے رکشہ فیس ادا کرنا پڑتی ہے۔ پارکنگ پرچی کٹنے تک گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ پہلے انتظار، پھر اسٹریچر کی تلاش، اتنی دیر میں مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ مرکزی دروازے سے پارکنگ عملہ ہٹا کر اسپتال کے پارکنگ قیام مقام پر بٹھایا جائے۔ بجلی جلاؤ، ادائیگی بھول جاؤ۔ فیصل آباد کے 10 سرکاری ادارے 2 ارب سے زائد کے نادہندہ۔ فیسکو نے ادائیگی کے لیے 7 جولائی تک کی مہلت دے دی۔ واسا 70 کروڑ روپے کے بجلی بل ادا نہ کرنے پر سب سے بڑا ڈیفالٹر ٹھہرا۔ ترجمان فیسکو سعید رضا کہتے ہیں، ڈیفالٹرز کو وارننگ نوٹسز بھجوا دیے گئے، عدم ادائیگی پر بجلی کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔
फैसला के डिफाल्टर सरकारी अदारों को फेस्को की मोहलत। बिजली बिल अदा न करने वाले 10 अदारों को अदायगी के लिए 7 जुलाई का वक्त दे दिया। सरकारी अदारों ने फेस्को के 2 अरब रुपए के बिल अदा नहीं किए। वासा 70 करोड़ रुपए का डिफाल्टर में लायलपुर टाउन ने 1 करोड़ से जायद के बिजली बिल अदा नहीं किए। महकमा हेल्थ भी फेस्को का 1 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद का डिफाल्टर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1.5 करोड़ रुपए के बिजली बिल अदा नहीं किए। महकमा रेलवे के जिम्मे भी 50 लाख रुपए की बिजली बिल वाजिबुल अदा। महकमा गैस भी फेस्को के लाखों रुपए का डिफाल्टर ठहरा। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा का कहना था कि डिफाल्टर सरकारी इदारों को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए हैं। ना दहिंदा सरकारी इदारों को 1 हफ्ते का वक्त दिया है ताकि वो अपने बिजली बिल जमा करवा सकें। तमाम को जो है वो 12 बार जो है वो याद दहानी भी करा चुके हैं कि आप अपनी पेमेंट जो है वो जल्द से जल्द अदा करें। जितने भी सरकारी कनेक्शन हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के या फेडरल गवर्नमेंट के, इनको 1 वीक का मज़ीद इनको टाइम दिया गया है ताकि वो अपनी पेमेंट्स रिकनसाइलेशन करवा के फेस्को के अकाउंट्स में जमा करवाएं। फेस्को हुकाम का कहना था कि अदम अदायगी की सूरत में सरकारी इदारों के बिजली कनेक्शन मुनक़ता होंगे। कैमरामैन मलक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। लारी अड्डा जंग में तरक्याती काम जारी, जबकि मुल्हका रोड खस्ता हाली का शिकार। लारी अड्डा को रशीद चौक और सिन्योट रोड से मिलाने वाली शाहराह इंतजामिया की अदम दिलचस्पी का शिकार। गुबार के बाद राहगीरों को सांस और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला करने लगे। जंग के मरकजी लारी अड्डा में एक जानिब तरक्याती काम जारी हैं, दूसरी जानिब मुल्हका रोड बदतरीन खस्ता हाली का शिकार है। सीवरेज लाइन बिछाने के बाद सड़क को मुकम्मल बहाल करने के बजाय सिर्फ मट्टी डालकर छोड़ दिया गया, जिसके बाद रोजाना शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लारी अड्डा को रशीद चौक और पुराना सीवरेज रोड से मिलाने वाली अहम शाहराह पर गर्दोबार बादल मामूल बन चुके हैं। गाड़ियों की तरफ से उड़ने वाली धूल न सिर्फ सफर को दुश्वार बना दिया बल्कि शहरियों के लिए सांस और फेफड़ों से मुतल्लिक बीमारियों का खतरा भी बढ़ा दिया गया। सिन्योट इंतजामिया की जानिब से रिक्शा स्टैंड काम, रिक्शा स्टैंड पर सानवेजा रिक्शा ड्राइवर मुनासिब पर खुश, मजीद जगह का मुतालबा भी कर दिया। सिन्योट इंतजामिया की जानिब से रिक्शा स्टैंड कायम किया गया, रिक्शा स्टैंड पर साइन बोर्ड अवेजा कर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर मुनासिब जगह मिलने पर खुश, मजीद जगह का मुतालबा किया। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं हम सड़क पर खड़े होते थे, हमारे चालान चाहते थे। गवर्नमेंट ने हमारे लिए काफी आसानी की है, यहाँ पर मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। अब तो साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं, शहरी बोर्ड देखकर रिक्शा स्टैंड पर आ सकते हैं। इंतजामिया अगर मजीद जगह दे दे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जंग में हीट वेव की शदीद लहर, गर्मी की गैर मामूली शिद्दत से शहरी निडाल से भी मुरझाने लगी। जिला में 35 एकड़ रकबे पर काश्त कपास की बढ़ोतरी शदीद मुतासिर, पैदावार में कमी का खदशा लाहक हो गया। मजीद महकमा ज़राअत तौसीन ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी। जंग में शदीद हीट वेव के बायस इंसानी जिंदगी के साथ साथ ज़रूरी शोबा भी शदीद मुतासिर होने लगा। गर्मी की गैर मामूली शिद्दत के नतीजे में तकरीबन 35,000 एकड़ काश्त की गई कपास की फसल की बढ़ोतरी मुतासिर, जिससे पैदावार में कमी का खदशा लाहक हो गया। सूरत हाल के पेश नजर महकमा तौसीन ने हंगामी इकदाम करते हुए खसूसी टीमें तश्कील दे दी जो मुतासरा इलाकों का मुसलसल दौरा कर रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर चाल का कहना था कि मौजूदा मौसमी हाल में काश्तकार गैर जरूरी स्प्रे से गुरेज करें और महकमा ज़राअत की एडवाइजरी पर मुकम्मल अमल करें। उनका मजीद कहना था कि महकमा ज़राअत की टीमें रोजाना मुख्तलिफ इलाकों में जाकर फसलों का मुआयना कर रही हैं। किसानों की फौरी तकनीकी मुआवनत भी फराहम की जा रही है ताकि कपास की फसल को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। गर्मी की शिद्दत बरकरार है जिससे कपास की ग्रोथ रुक गई है, उसमें हम टॉनिक करवा रहे हैं और एक बैग कैन गुआरा वो फ्लड रहे हैं, उससे ठंडा का एहसास होता है और पौधा जो है अपने आप को महफूज रख सकता है। महकमा ज़राअत का फील्ड स्टाफ काश्तकारों को फसल की निगहदाश्त, बरवक्त आबपाशी, मुनासिब ज़रई अद्वियात के इस्तेमाल और गर्मी के असरात से बचाव के हवाले से रहनुमाई फराहम कर रहा है। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, 41। सिन्योट धान की फसल की जिला में क्या सूरत हाल है और कितने रकबे पर फसल काश्त की गई, महकमा ज़राअत का सर्वे करवाने का फैसला। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत रिजवान आमिर खान ने फील्ड अमले को सर्वे की हिदायत कर दी। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत का कहना है 90,000 में से अब तक 46,000 एकड़ पर रकबा धान की फसल काश्त की जा चुकी है। किस जगह कौन कौन सी वैरायटी काश्त की गई रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। मुठों को आग लगने से बचाने के लिए काश्तकारों में पंफलेट तैयार किए जाएंगे। बेनसीर इनकम प्रोग्राम के तहत इमदादी किस्त जारी, जिला टोबा टेक्सिंग में 77,000 मुस्तहिक खातीन को रकूम फराहम की जाएंगी।
خواتین کو 14,500 रुपए की किस्त मिलेगी। आपको अपडेट करें, जिला भर में BISP प्रोग्राम की रकम की अदायगी के लिए 70 से ज्यादा रिटेलर शॉप कायम गई हैं। इस हवाले से इंतजामिया का कहना था रिटेलर शॉप्स पर खातन को बगैर कटौती के पूरी किस्त दी जाएगी। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदादी रकम मिलने वाली 6,000 खातन ताहाल सिम हासिल नहीं कर सकें। सिम के बगैर खातन को रकम की अदायगी नहीं होगी। पंजाब के तालीमी बोर्ड में अहम इंतजामी तब्दीलियां। फैसलाबाद समेत पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड में चेयरमैन तैनात। राना बिनियामिन को चेयरमैन तालीमी बोर्ड फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। राना बिनियामिन मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान में चेयरमैन के ओहदे पर जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज फैसलाबाद डॉक्टर इकबाल महमूद को चेयरमैन रावलपिंडी बोर्ड तैनात कर दिया गया। DPO चनियोट डॉक्टर नवीद आतिफ ने नमाज जुमा के मौका पर जामिया मस्जिद फारूकिया मंडी शेखा चनियोट में खुली कचहरी लगाई। SHO थाना सिटी और दीगर अफसरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। DPO नवीद आतिफ ने शहरियों के मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। शुरका को पुलिस की जानिब से मुहैया की जाने वाली अवाम दोस्त पुलिस खदमात, बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए इक़दामात के हवाले से आगाही दी। DPO नवीद आतिफ का कहना था, मस्जिद में कचहरी लगाने का मकसद आपके मसाइल आपके पास आकर सुनना और उनको हल करना है। चोबा ट्रैफिक पुलिस की कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जिला भर में 6 माह के दौरान 72,283 गाड़ियों के चालान हुए। 14 करोड़ 20 लाख से ज्यादा के जुर्माने किए गए। महकमे ने 6 माही कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। ओवरलोडिंग और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों भी निशाने पर रहीं। तेज रफ्तार गाड़ियों के खिलाफ भी मुकदमात का इंदराज करवाया गया। काले शीशे वाली गाड़ी मालिकान को कानून का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना था, कानून की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी मालिकान को भारी जुर्माने किए गए हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गर्मी के बाद चनियोट में सैकड़ों शहरी बीमार। जिला भर में डायरिया की वबा फूट पड़ी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 24 घंटे के दौरान 200 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। बेशतर अफराद में पेट दर्द, कै और पानी की कमी की अलामत पाई गई। तभी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर लाने का मशवरा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस शहरी बीमार पड़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान डायरिया के मरीजों की तादाद 200 से ज्यादा रिपोर्ट हुई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डायरिया के मरीजों की तादाद में नुमाया इजाफा देखे जाने लगा। AMS डॉक्टर उमैर ताहिर का कहना था कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे से लोग पेट के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। गर्म मौसम में हवा में नमी का तनासुब ज्यादा है, पसीना भी ज्यादा आता है। गर्मी के दौरान नमकियात की कमी से भी शहरी मुतासिर हो रहे हैं। शहरी पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, साफ चीजें खाएं पिए तो डायरिया से बचा जा सकता है। DHQ अस्पताल में 1000 के करीब इमरजेंसी होती है। आजकल बड़ी तादाद में पेट के अमराज सामने आ रहे हैं। ये वाला मौसम जो है वो वैसे ही बड़ा आम है डायरिया और इस तरह की बीमारियों के लिए। इसमें ये है कि एक तो हवा में नमी जब बढ़ती है, जरासीम आते हैं, वायरल इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, उसमें बच्चों की बड़ी तादाद हमारे पास रिपोर्ट होती है, बड़े भी मुतासर होते हैं। तो हमारी अभी डेली OPD जो है वो अराउंड 1000 के करीब हमारी इमरजेंसी चल रही है और 1800 से लेके 2000 तक जो है वो OPD के मरीज आ रहे हैं। तो उसमें शहरियों को मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि वो एक तो साफ़ सुथरा पानी इस चीज़ों का इस्तेमाल करें, हैंड्स हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें और उसके बाद ये कि बाहर निकलते वक्त ज़रा एहतियाती तदाबीर करें, जिसमें सर को ढांपें, पानी मशरूबात वगैरह जिसमें कि नींबू पानी या निमकोल वगैरह उनका इस्तेमाल करें। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के ख्वाहिशमंद अफराद से 9 जुलाई तक दरखास्तें तलब। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से फेज 3 के मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक से मुतालिक नोटिस जारी कर दिया गया। कामयाब डॉक्टर्स को सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी और वर्किंग नंबर जारी किए गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से बुनियादी मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के बाद उन्हें आउटसोर्स किया जा रहा है। इस सिलसिले से महकमा सेहत हुकाम का कहना था, जो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक हासिल करना चाहते हैं तो वो 9 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें हेल्थ मैनेजर बनने पर सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी और वर्किंग के नंबर फराहम किए जाएंगे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला में शोबा डेंटल मुकम्मल तौर पर फ़ाल। शोबा डेंटल में सेकंड शिफ्ट का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया। शोबा डेंटल हुकाम के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 60 से ज्यादा मरीज रजू कर रहे हैं। शोबा डेंटल में सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर नवीद रफीक की सरबराही में सुबह 8 से रात 8 बजे तक डॉक्टर 2 शिफ्टों में फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मरीजों को दांतों के इलाज से मुतल्लिक तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन फैसलाबाद का हिफाजती वैक्सीन मुहिम बनाने का फैसला।
6 से 9 जुलाई तक मुख्तलिफ मोजी अमराज से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। शहर की 32 असाज यूनियन काउंसिल में हिफाजती वैक्सीन मुहिम मनाई जाएगी। खन्नाक, तबदक, काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार और पोलियो समेत 13 मोजी अमराज से बचाव की हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। मौजी बीमारियों से बचाव की हिफाजती वैक्सीन से महरूम बच्चों को तलाश करके वैक्सीन लगाई जाएगी। महकमा सेहत हुकाम का कहना था, शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें, टीमों के साथ ताउन करें और बच्चों को हिफाजती वैक्सीन जरूर लगवाएं। महकमा तालीम फैसलाबाद में तमाम तालीमी इदारों को सुबह और शाम के औकात में बंद रखने का हुक्म। CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम ने लाहौर में एकेडमी की छत गिरने से 14 बच्चों की हलाकतों के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में कहा गया, तालीमी इदारे गर्मी की छुट्टियों पर अमल दरामद करें और बच्चों को किसी सूरत स्कूल ना बुलाया जाए। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो स्कूल मौका पर सील कर दिया जाएगा। DOs, डेप्यूटी DOs और AEOs को स्कूल विजिट करने की हिदायत जारी की। महकमा तालीम फैसलाबाद में तमाम तालीमी इदारों को सुबह और शाम के औकात में बंद रखने का हुक्म। CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम ने लाहौर वाक़े के तनाजुर में नोटिफिकेशन जारी किया। लाहौर में एकेडमी की छत गिरने से 14 बच्चों की हलाकतों के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। तालीमी इदारे गर्मी की छुट्टियों पर अमल दरामद करें और बच्चों को किसी सूरत स्कूल ना बुलाएं। रट्टा सिस्टम और कॉपी पेस्टिंग का खात्मा नागुज़ीर। गर्मियों की छुट्टियां तालीम और तरबियत का सुनहरी मौका करार। फैसलाबाद में नौनिहालों की तख्लीकी सलाहियतें निखारने के लिए 3 हफ्तों पर मुश्तमिल कम्युनिकेशन वर्कशॉप का इनेकाद किया। तालीमी अदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियां, लेकिन इस दौरान बच्चों की लर्निंग जारी रखने के लिए मुख्तलिफ अदारों की तरफ से तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया जाता है, ताकि छुट्टियों में बच्चों को रट्टा सिस्टम और कॉपी पेस्टिंग की बजाय तख्लीकी सरगर्मियों की तरफ लाया जाए। स्कूल का होमवर्क भी जरूरी, लेकिन बच्चों को सॉफ्ट स्किल भी सिखाएं। इमोशनली स्टेबल फील नहीं करता, कंफर्टेबल फील नहीं करता ना, वो ओपन अप नहीं होता। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो आज हमें ज़रूरत है कि बच्चे कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाएँ अपनी बात को। सो वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारे पास 3 साल का बच्चा भी आ रहा है, 5 साल का भी है, 7 साल का भी है और 10 साल का भी बच्चा है, और हम उनके ग्रुप की एक्टिविटीज़ जिस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि टास्क एक ही है बट डिफरेंट तरीके से है। फैसलाबाद में फन बॉक्स एक्टिविटी में स्टूडियो में 3 हफ्तों पर मुश्तमिल कम्युनिकेशन स्किल्स और वर्कशॉप का इख्तिताम किया गया। वर्कशॉप में बच्चों से मुख्तलिफ आर्ट वर्क और तकरीर के हुनर में बेहतरी के लिए एक्टिविटीज मुनक्किद कराई गई। स्टेक्स और कुछ भी हमने वहाँ से वो चीज़ों को कलेक्ट किया। उसके बाद हम रूम में आए और हमने उन नेचुरल चीज़ों से फेसेस इमोशंस बनाए। ग्राउंड में गए, उसके बाद चीज़ें ली, उसके बाद फेसेस बना दिए। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आई हैव रियली फन ऑन दिस डे। I will come again, inshallah. We are the future. If we don't protect it, the future generation will need to suffer. We need to protect it to make the future generations a happy earth tomorrow. सदारती अवार्ड याफ्ता माहिर तलीम माहिर जबीन कामरान का कहना था कि बच्चों के लिए नंबर हासिल कर लेना काफी नहीं, उन्हें पुरएतमाद बनाना ज्यादा जरूरी है। बच्चों को खेलकूद, आर्ट वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना वक्त की अहम जरूरत है। क्या कहते हैं कि बच्चों को पहले एक्सप्लोर कराते हैं। जैसे भी आज हम अर्थ के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम बच्चों की नेचर वॉक करवाई पहले, फिर उनसे हमने मटीरियल कलेक्ट करवाया, फिर उस मटीरियल को बच्चों ने एक्सप्लोर किया, उनके नाम याद किए डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, फिर हमने उनको परफॉर्मेंस करवाई। अच्छा, जब बच्चों ने एक्टिव लिसनिंग हो गई, उनकी एक्सप्लोरेशन हो गई, उसके बाद फिर हमने बच्चों से एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया यहाँ पे बोलने के लिए कॉन्फिडेंटली। तरबीती वर्कशॉप में 3 हफ्तों के दौरान बच्चों को तकारीर, टीम वर्क, आर्ट वर्क, सोशल नेटवर्किंग समेत मुख्तलिफ सिखाई जाएंगी। कैमरामैन ज़ुबैर जोधा के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी फैसलाबाद। अहम खबर आपको दें, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर को तब्दील करके डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मोहम्मद नुमान सदीक को तब्दील करके डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। अपडेट करेंगे आपको। अहम खबर है, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर को तब्दील करके डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। DC मुल्तान मोहम्मद नुमान सदीक को तब्दील करके डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। अपडेट करेंगे खबर के हवाले से आपको। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर को तब्दील करके डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। वकास बेग हमारे साथ हैं, वकास बताएगा। अच्छा, बिल्कुल, फैसलाबाद समेत 3 डिप्टी कमिश्नर से तबादले किए गए हैं महकमा SNGAD की जानिब से, और तीनों डिप्टी कमिश्नर से तबादले का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नुमान सदीक को डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद तैनात किया गया है, जबकि इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर को डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। इसी तरह
डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा को भी तब्दील किया गया है, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान हाफिज मुदस्सर नवाज को डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का इजाफी चार्ज दिया गया है। फैसलाबाद में एक लंबा टेनोर और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के बाद डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर जो हैं उनका अब तबादला किया गया है और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी तैनात किया गया। जी बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए।